हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मंच पर आसीन आदरणीय सर राजू जी, प्रो वाइस चांसलर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद बुक फेयर के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और चंद्रमोहन जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूँ तो हिंदी जगत में, तेलुगु जगत में प्रो वाइस चांसलर आदरणीय सर राजू जी को सभी लोग पहचानते हैं, फिर भी उनके विषय में कुछ आप लोगों को जानकारी देने का दुस्साहस मैं कर रही हूँ। प्रोफेसर R.S. Raju has specialized in the area of functional healing, translation studies and comparative Indian literature. He was awarded the Certificate of Merit by Human Resources Development Ministry, Government of India in 1989 for his contribution to Hindi language and literature. Further, the Bihar State Government awarded Dr. George Garrison Award in 2015. Professor R.S. Raju was born on 20th September 1958 in a village called Rathipaddu of East Godavari district, Andhra Pradesh. He graduated from Osmania University and obtained MA degree in Hindi language and literature from Andhra University, Visakhapatnam. He submitted his doctoral thesis on the birth of novel literature in India, a comparative and sociological analysis, and was awarded PhD from Andhra University in the year 1984. After obtaining PhD degree, he worked as a research associate from 84-90 and started teaching Hindi language and literature at postgraduate level. Subsequently, he was appointed as a lecturer in 90 in the Department of Hindi, Andhra University, Visakhapatnam. He continued his teaching at University of Hyderabad from 1996 onwards and was appointed as a reader in Hindi in 2000. समय के अभाव के कारण मैं इसे कम में कर देना चाह रही हूँ। During his service in Jawaharlal Nehru Cultural Center, Embassy of India, Moscow on deputation and taught in Moscow State University and Moscow State University of Humanities. On return to University of Hyderabad, he has been continuing the professor of Hindi since 2008. Apart from Russia, he has visited South Africa in 2012 and America in 2017 to 18. He had published 8 books and more than 60 research papers and translated a few works from Hindi to Telugu and vice versa among which translation of science fiction of Mr. M.K. Sadashiva Rao, IPS from Telugu to Hindi and Pandit Deen Dayal Upadhyay written by Shri Mahesh Chandra Sharma from Hindi to Telugu. Bharatiya Hindi to Telugu publication by Publication Division, Government of India are worth mentioning. Among the books, the following titles were received in academic community. भारतीय उपन्यास साहित्य की भूमिका, तेलुगु काव्य धारा में आधुनिकता बोध, भारतीय उपन्यास साहित्य का उद्भव, प्रयोजन मूलक हिंदी, आज की हिंदी और अनुवाद की समस्याएं, तुलनात्मक शोध और सामाजिकता बोध। 12 research students were awarded PhD.
PhD degree and 23 students were awarded for MPhil degree under his guidance. Oh my God! सभाजी जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इसमें इतने सारे PhD अवार्ड मिले हैं और MPhil की डिग्री भी आपको बहुत मिली है। अंत में आप He is member of academic bodies in various universities like Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, Central University of Gujarat, Central University of Karnataka, Central University of Tamil Nadu, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Nagarjuna University, Guntur, Andhra University, Visakhapatnam, AP and several autonomous college and has been contributing in the preparation of syllabi for teaching Hindi at graduate and postgraduate level. समय के कारण मैं इसे कम कर दिया मैंने, इनका बहुत अधिक है। हाथ करलन को आरसी क्या कहने को, उनकी अनेक अनेक उनमें क्वालिटीज हैं, तो सूरज को मैं क्या दिया दिखाऊं, मेरी क्षमता उतनी नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगी, विद्वत्वं च नप्रत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। धन्यवाद। आदरणीय सभाजी जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभा भारती जी, आपने संक्षिप्त में आदरणीय सरराजू जी का परिचय दिया। तो मैं आदरणीय सरराजू जी से अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य देने का यहाँ पे कष्ट करें। और आदरणीय गौरी शंकर जी, चंद्रशेखर जी, सुतकांत भारती जी और विभा जी, मेरे सामने उपस्थित पुस्तक प्रेमी मित्रों, मैं इसलिए आपके सामने आज आया हूँ कि ये अनुरोध करने के लिए कि आप हिंदी और भारतीय भाषाओं की किताबें जरूर पढ़िएगा और जरूर लीजिएगा। बहुत सारी किताबें यहाँ इस पुस्तक प्रदर्शनी में हैं, क्योंकि मातृभाषाओं को सम्मान देना, मातृभूमि को सम्मान देना, ये हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा हिंदी लगभग 45% लोग भारत में समझते हैं। भारत में ही नहीं, हिंदीतर प्रदेशों में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में कई देशों में तो हिंदी समझी जाती है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सबको हम हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। तो इस पूरे प्रदेश की जनता और उसके साथ हिंदीतर प्रदेशों में रहने वाली जनता, कुल मिलाकर 45% जनता हिंदी को समझती है। पूरी भारतीय चेतना, भारतीय सृजनात्मकता हिंदी के माध्यम से उभर कर हमारे सामने आती है। और इस पूरे प्रदेश में तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बोली जाती हैं, और इसी से खड़ी बोली और मानक हिंदी का विकास हुआ था। तो शुरू से हिंदी भारत की संपर्क भाषा रही। और हिंदी के माध्यम से भक्ति आंदोलन का प्रसार मध्य युग में हुआ था। दक्षिण की देन के रूप में भक्ति आंदोलन को हम अक्सर देखते रहते हैं। आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा और भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों का प्रकाशन इस भाषा में होता है, फिल्मों में इसका प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषाई प्रदेश में शिक्षा का भी ये माध्यम है। और कई लेखक और रचनाकार हिंदी में
लिखते हैं और इस तरह से हिंदी पूरी भारतीयता को समेटकर आगे बढ़ती है। और हिंदी से भारतीय भाषाओं में कई पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। अभी मैं इसका परिचय देता हूँ। हमारे सूर्यकांत जी का आग्रह है कि आप हिंदी के लेखकों का परिचय दीजिए, तो हिंदी के महत्व का भी आप परिचय दीजिए। तो यहाँ दुनिया भर में तीसरे स्थान पर तो हिंदी बोली जाती है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। अब चूंकि भारत एक जनतांत्रिक देश है, जनता की भाषा हिंदी है, तो इस भाषा के माध्यम से जनतांत्रिक विचारों के विकास की दिशा में हम जा रहे हैं। तो हिंदी के साथ पूरी भारतीय भाषाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी हमारे बीच में है, त्रिभाषा सूत्र को हम अपनाते आ रहे हैं, फिर भी एक देश की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी का अपना महत्व है। तो यहाँ हिंदी में हिंदी भाषी ही नहीं, हिंदीएतर भाषी भी कई लेखक लिखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में हिंदी में लेखन का आरंभ जो है, जैसे तेलुगु में हुआ था 1000 साल पहले हुआ था। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहप्पा को हम हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। 84 सिद्धों की बात और नाथों की बात हम करते रहते हैं। तेलुगु में एक किताब है नवनाथ चरित्र, नाथों के बारे में। तो हिंदी में जो कुछ लिखा गया है उसका तेलुगु में नवनाथ चरित्र के नाम से अनुवाद किया गया है। ये हिंदी भक्ति काव्य की आधारशिला इससे बनती है। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में हम सरहप्पा को लेते हैं। और इनकी कोई एक पुस्तक नहीं है, कई यानी पुस्तकों में इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है। वास्तव में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषाई समाज की भावात्मक अभिव्यक्ति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। यहाँ एक और बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। अब ध्यान दीजिए, कवि स्वयंभू हिंदी में अपभ्रंश में लिख रहे थे 783 के आसपास। वास्तव में ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे, लेकिन अपभ्रंश में लिख रहे थे। इस तरह से तो जो लिखने वाले हैं सिर्फ हिंदी प्रदेश तक सीमित नहीं है, भारतीय भाषाओं को बोलने वाले कई लोग तो हिंदी में लिखते आ रहे हैं। तो ये एक विशेषता हमारे सामने आती है। तो यहाँ 10वीं शताब्दी तक आते आते पुष्पदंत को हम हिंदी के प्रमुख कवि के रूप में देखते हैं। तो इन्होंने महापुराण लिखा था। 63 महापुरुषों के जीवन की घटनाएं तो इसमें हमें दिखाई देती हैं। तो और इस तरह से सरहप्पा का नाम लिया जाता है, शबरपा का नाम लिया जाता है। गोरखनाथ की वाणी इधर तेलुगु में भी हमें दिखाई देती है, भारतीय भाषाओं में दिखाई देती है। तो चंद्रवरदाई को हम हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो उनकी रचना है। आज भी साल में देखिए हमारे सभी विद्यार्थी चंद्रवरदाई को पढ़ते हैं। भारत भर की भाषाओं में इस रचना का अनुवाद हुआ है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी बताई गई है। तो इस रूप में एक क्रमशः हम हिंदी साहित्य और क्योंकि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास लगभग 1000 के बाद हुआ था, तमिल का कुछ पहले हुआ था। तो पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य में तो जो रामायण और महाभारत की गाथाएं दिखाई देती हैं, ये गाथाएं तो हिंदी में आ गई, भारतीय भाषाओं में आ गई। और यहाँ बार बार हम कबीर, तुलसी, सूर की बात करते हैं। तो इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ। तो कबीर को हम रामानंद के शिष्य के रूप में मानते हैं।
और यहाँ कबीर इस तरह से कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं आप। तो कभी मैंने कलम को पकड़ा ही नहीं, और यानी ये कागज को छुआ तक नहीं, लेकिन मेरी वाणी ही महत्वपूर्ण है दिया इस तरह से। तो हिंदी के सभी कवियों में मध्यकाल में कबीर बहुत महत्वपूर्ण है। तेलुगु में ही नहीं, पूरी भारतीय भाषाओं में कबीर को हम देख सकते हैं। पूरी भारतीय चेतना को प्रभावित करने वाले ये समाज सुधारक कबीर थे। फिर आप मैं कहता हूँ, तो कबीर ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज लेखी। आप पुराणों की परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन जो अनुभव के बल पर तो हिंदी भाषाई प्रदेश में जो कुछ उन्होंने देखा था उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया था। तो उस समय के समाज में जो कुरीतियां प्रचलित थी तो उनका उन्होंने खंडन किया था। समाज सुधार की दृष्टि से इनका नाम महत्वपूर्ण है। फिर आप रैदास को देखिए, हमारे वी कृष्णा जी हमारे कोलीग जो प्रोफेसर थे, रैदास की रचनाओं, पूरी रचनाओं का उन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया था। तो एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में तो हमारे सामने आते हैं। फिर आप गुरु नानक को देखिए, हिंदी में उन्होंने भी लिखी। आप गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके बहुत सारे अभिव्यक्तियां हमें दिखाई देती हैं। फिर आप दादू दयाल को देखेंगे, मुलुकदास, सुंदरदास, गुरु अंगद, बहुत सारे रचनाकारों को इधर भारतीय भाषा में अनुदित होते हुए तो देखते हैं। इसके बाद तो हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, पद्मावत। इसका भी अनुवाद हुआ है, पूरा अनुवाद नहीं हुआ है, कुछ कुछ खंडों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। राजा रतन सिंह और सिमल राजकुमारी पद्मावत के प्रेम और उसके विवाह के बाद की कहानी इसमें कही गई है। यहाँ मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का प्रभाव उत्तर पर पड़ा, तो भारतीय भाषाओं पर ये जो प्रभाव है कई रूपों में हमें दिखाई देता है। तो अभी मैंने स्पष्ट किया कि रामायण और महाभारत की कहानियों को लेकर जो कुछ लिखा गया है वहां से भारतीय साहित्य का प्रारंभ होता है। इस संदर्भ में मैं गोस्वामी तुलसीदास का नाम लेना चाहता हूँ। हर घर में गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस हमें दिखाई देता है, पूरा अनुवाद तेलुगु में हमें दिखाई देता है। फिर आप यानी पुरुषोत्तम राम की सौर शक्ति से तो संबंधित लीलाओं का गायन करते हैं। बाह्य के आक्रमणों के विरुद्ध तो राष्ट्र में जो सोई हुई चेतना है उसको जगाने में तुलसीदास ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आप वल्लभ संप्रदाय के कवियों को लीजिए, कृष्ण भक्त कवियों को, तो इनमें सूरदास का नाम हम लेते हैं। तो हर घर में सूरदास के पदों का गायन होता है उत्तर भारत में। और इसके अतिरिक्त सूर का जो बाल्य वर्णन है पूरे विश्व साहित्य में इस साहित्य को महत्वपूर्ण रूप में तो स्वीकार करते हैं, लाजवाब है। तो कई भारतीय रचनाकारों ने ये बात कही थी। तो उनके साथ अष्टछाप के कवि हिंदी में बहुत प्रसिद्ध हुए, उसमें कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजा, इन सबका नाम हमारे तेलुगु लोगों को भी मालूम है। तो जो वैष्णव भक्त हैं इनका नाम से उनको परिचित ही है। फिर मीराबाई को याद करेंगे। मीराबाई के भजन जो है आज भी कई जगह गाए जाते हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों में या सत्संग होता है तो मीराबाई के भजनों का गायन होता है। फिर आप रसकान का नाम भी याद कीजिए, कृष्ण भक्ति परंपरा। इसी तरह से तो उसके बाद आने वाले कवि और साहित्यकार हैं रीतकाल के कवि, तो चिंतामणि, देव, भिकारीदास, पद्माकर, तो ये सब यहाँ इस समय के तो कवि हैं। तो मैं सिर्फ नामों का उल्लेख करते जा रहा हूँ जो कवि प्रसिद्ध हुए, तो जिनका प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य पर तो दिखाई देता है। कुछ प्रवृत्तियां, इनकी विशेष प्रवृत्तियां हैं। तो इस तरह से तो अब बिहारी का नाम यहाँ पूरे भारत में लोगों को मालूम है। तो उनका एक छंद है, दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा।
बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, तो जो तेलुगु भाषी लोगों को भी ये मालूम है ये कहानी। और ये जो दोहा उन्होंने लिखकर महाराज के पास पहुंचाया था, तो बहुत अद्भुत प्रभाव महाराज और महारानी पर इसका पड़ता है। तो दोनों इससे प्रसन्न होते हैं, फिर एक दूसरी दिशा यानी प्रशासन को मिल जाती है। तो फिर घनानंद का भी यहाँ उल्लेख करते हैं, इनकी भी कुछ रचनाओं का अनुवाद हुआ। तो इस रूप में एक काव्यशास्त्रीय परंपरा के साथ तो कई विशेषताएं आचार्य कवियों के द्वारा तो हमारे सामने तो हिंदी के माध्यम से आती हैं। तो इसके बाद 1857 के बाद भारतीय इतिहास एक नया मोड़ लेता है। तो फिर अंग्रेजों के आगमन के बाद पश्चिमीकरण शुरू हुआ, तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज वगैरह तो पुराने धर्म को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हिंदी साहित्यकारों पर, हिंदी लेखकों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो रामकृष्ण मिशन या केशव सोसाइटी, इन सब ने भारतीय नवजागरण को योग दिया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस संदर्भ में हम याद करते हैं। भारतेंदु जी की रचनाओं का भी अनुवाद हमें तेलुगु और भारतीय भाषाओं में तो दिखाई देता है। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार या शिक्षा के प्रसार का महत्व, नारी शिक्षा वगैरह का महत्व, तो इनके माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो इसके बाद राधाचरण गोस्वामी का नारा बहुत प्रसिद्ध है, हमारे उत्तम भारत देश। तो भारत देश स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में इनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। तो यहाँ प्रेमधन का भी हम उल्लेख करते हैं, तो जिन्होंने कहा धन्य भूमि भारत सब रत्न के उपजा बने। तो इस रूप में भारत माता की गरिमा का वर्णन तो यहाँ कवि करते थे। तो फिर यहाँ मैं संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हिंदी में इन भाषाओं से कई अनुवाद हुए। तो संस्कृत से भावभूति, कालिदास, सूत्रक, श्रीहर्ष के नाटकों का अनुवाद हुआ। तो बांग्ला से माइकल मधुसूदन का अनुवाद हुआ। इनसे फिर तो हिंदी लेखकों को प्रेरणा मिली। तो प्रधान रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों का तो जो अनुवाद हुआ, वहाँ से प्रभावित होकर हिंदी में उपन्यासकार उपन्यास लिखने लगे। तो किशोरीलाल गोस्वामी, राजाराम शर्मा, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, तो कई उपन्यासकार वहाँ इस समय हुए। सो इनमें गोपाल राम गहमरी का नाम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि अद्भुत लाश, गुप्तचर वगैरह का इधर तेलुगु में भी, भारतीय भाषा में एक डिटेक्टिव नवल, एक युग था, पंचकड़ी देव के बहुत सारे नवल इधर तेलुगु में अनुदित हुए, इसी रूप में तो हिंदी में भी। फिर तारकनाथ गंगुली, रमेश चंद्र दत्त, बहुत सारे अनुवाद बांग्ला से हिंदी में दिखाई देते हैं। इस क्रम में हिंदी में निबंध लेखन और गद्य लेखन का भी विकास हुआ, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। तो अब इस संदर्भ में मैं साहित्येतर जो गद्य का जो विकास हुआ है इसका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। तो भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्त, कई विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। और प्रताप नारायण मिश्र, जैसे कि तेलुगु में पॉन्वेंट लक्ष्मी नारायण समारोह के साक्षी हैं, उसी तरह के बहुत सारे निबंध यहाँ प्रताप नारायण मिश्र के भी दिखाई देते हैं। तो जो शीर्षक है आप ध्यान दीजिए, खुशामद, आप, बात, दान, परीक्षा, समझदार की मौत, तरह तरह के शीर्षक हमें तो दिखाई देते हैं। तो वास्तव में जनता को जागरूक करना और समसामयिक समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना इन लेखकों का या इन रचनाकारों का आशय था। तो इसके बाद भारतेंदु युग में ही यानी कि 1857 के बाद हिंदी में जीवनी साहित्य का विकास हुआ। यानी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र या छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र, इस प्रकार के जीवन चरित्र जो लिखे गए, इनका अनुवाद भारतीय भाषा में हमें दिखाई देता है। तो इसके बाद यात्रा वृत्त, लखनऊ की यात्रा या हरिद्वार की यात्रा,
तो इस तरह की यात्रा वृत्त भी इधर लिखे जाने लगे। तो तेलुगु में भी यात्रा वृत्त हमें दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी परंपरा हमारी यहाँ दिखाई देती है। यानी यहाँ इसके अलावा तो जो ज्ञान का साहित्य है, यानी इतिहास, राजनीति, भूगोल, ललित कला, भक्ति, धर्म दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, तो इस तरह से संबंधित विषयों से संबंधित किताबें प्रकाशित होने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये सब की रचनाएं यहाँ सामने आने लगी। तो हरिओद जी का प्रिय प्रवास, इसका तेलुगु में भी अनुवाद हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण रचना है। तो ये राधा और कृष्ण को यहाँ सामान्य नायक और नायिका के स्तर से ऊपर उठकर एक विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिशें की गई है। फिर मैथिली शरण गुप्त का नाम 1900 के बाद हिंदी में सर्वाधिक प्रचलित नाम है। इनको हम राष्ट्र कवि के रूप में देखते हैं और इन्होंने देशवासियों में जाति और देश के प्रति बहुत ही गौरव भावना को जागृत करने की कोशिश की। साकेत, यशोधरा वगैरह इनकी रचनाएं हैं। तो इनका भी, साकेत का तेलुगु में भी कुछ खंडों का अनुवाद तो हुआ है। तो इसी समय रामनरेश त्रिपाठी जी का भी नाम लेना चाहिए। तो मिलन, पथिक वगैरह काव्यों के बल पर इन्होंने देशभक्ति, प्रकृति चित्रण वगैरह का प्रचार किया। देशभक्ति का विशेष रूप से नीति उपदेश का प्रचार इन्होंने किया था। इसके बाद 18 और 20 तक आते आते कुछ नाम लेखकों कवियों के उल्लेखनीय हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सब की रचनाओं का अनुवाद हमें तेलुगु में भी दिखाई देता है। तो इसके साथ 35 में जयशंकर प्रसाद तो जो आए, उनके खामायनी का उल्लेख हमें करना चाहिए। तो इलपाल पाउलूर पांडुरंगाराव जी ने इसका तेलुगु में अनुवाद किया था और मनु के अतिरिक्त संपूर्ण ये जो देव जाति का जो प्रलय है, उसकी कहानी को लेकर ये कृति एक मानव सभ्यता के विकास की कहानी के रूप में इसको यहाँ प्रस्तुत किया गया। और कामायनी के अतिरिक्त आंसू, लहर या महाराणा का महत्व वगैरह जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ अंशों का अनुवाद तेलुगु में भी तो हुआ था। फिर मैं यहाँ निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उल्लेख करना चाहता हूँ। और तुलसीदास, उनकी कृति है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित। तो राम की शक्ति पूजा में तो अधर्म पर धर्म की विजय को दिखाते हैं। वो एक शाश्वत संघर्ष जो धर्म पर धर्म की विजय हो है, तो उसका। फिर सुमित्रानंद पंत का नामोल्लेख करना चाहिए। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन वगैरह, तो इनमें भी इनकी कविताओं का अनुवाद तेलुगु में हुआ। तो रोमांटिक पोइट्री से प्रभावित होकर, जैसा कि कृष्ण शास्त्री वगैरह तेलुगु में भाव कवि हैं, उनके समानांतर यहाँ तो हिंदी में इनका नामोल्लेख करते हैं। प्रकृति चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बाद में ये अरविंद दर्शन से भी प्रभावित किए थे। इसके बाद महादेव वर्मा का भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए। महादेव वर्मा का भी तेलुगु में अनुवाद हुआ था। तो यामा, संध्या गीत वगैरह, तो लोक कल्याण की भावना से नारी की समस्याओं को भी लेकर लिखने वाली लेखिका है, महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में देगा। फिर हरिवंश राय बच्चन जी का उल्लेख करना चाहिए। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इनका पूरा तेलुगु में अनुवाद हुआ। फिर यहाँ मैं नाटकों का उल्लेख करना चाहता हूँ। तो जो जयशंकर प्रसाद जी तो कई नाटक हैं, जैसा कि अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त वगैरह, इनका यहाँ तेलुगु में हुआ। तो अभी मेरे सामने तो हमारे भीमसेन निर्मल जी की बेटी नादन पुरुषोत्तम कवि जी ने ये तेलुगु भाषित थे। तो ब्रज भाषा में उन्होंने नाटक, हिंदी में उन्होंने नाटक लिखे। नाटकों का कुछ समय मंचन भी हुआ था। तो उन्होंने विशेष रूप से इसका अध्ययन किया था। इसके बाद एकांकियों का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। तो आज भी देखेंगे साहित्य अकादमी की ओर से बहुत सारी एकांकियों का प्रकाशन हुआ है। तो जगदीश चंद्र माधुर, उपेंद्रनाथ अश्क या उदय शंकर भट्ट वगैरह, 2-3 नामोल्लेख करता हूँ। जयशंकर जी अब बोल रहे हैं कि आप सिर्फ नामोल्लेख करता हूँ। प्रेमचंद जी पूरे भारत में प्रचलित उपन्यासकार हैं। तो आचार्य चित्रसेन शास्त्री,
भगवती चरण वर्मा, राहुल सांकृत्यायन का उल्लेख करना चाहिए। तेलुगु में बहुत सारे उपन्यास उनके हमें दिखाई देते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का भी उल्लेख करना चाहिए। तो इधर नए कवियों में त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, या इधर लिखने वाले अरुण कमल, बलदेव वंशी, प्रयाग शुक्ल, मंगलेश डबराल, वेणुगोपाल जो हैदराबाद के हैं, तो जिन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। तो इस रूप में बाद के उपन्यासकारों के जो अनुदित उपन्यास हैं, अज्ञेय के उपन्यास या जैनेन्द्र के कुछ उपन्यासों का तेलुगु में हुआ। अभी मैंने कल समाचार पत्रों में देखा, अमृतलाल नागर के उपन्यास का विज्ञापन बहुत सस्ते में 20 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ जो भी स्टॉल्स हैं, तो इसमें तेलुगु में उसका बूंद और समुद्र का अनुवाद हुआ है, ये अमृत और विष। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा का भी उल्लेख करना चाहिए, रांगे राघव का। ये फिर इधर स्वातंत्रोत्तर युग में, समकालीन युग में जीवनी यात्रावृत्त, संस्मरण या रेखा चित्र वगैरह तो जिनका हुआ है, उसमें आजकल जो लिखा जा रहा है दलित साहित्य या नारीवादी साहित्य, तो इस रूप में, या आदिवासी साहित्य या अल्पसंख्यक वर्गों का साहित्य, ये भी हिंदी में दिखाई देता है। तो दलित रचनाकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, भगवान दास मोरवाल, या मोहनदास नैमिषारण्य, या शिवराज सिंह बैचैन, या तुलसी राम, या सुशीला ठाकुर, बहुत सारे हैं। नारीवादी लेखिकाएं भी हैं, या सुकृष्णा सोवती, उषा पी अमृता, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, नासिरा सर, बहुत सारे नाम यहाँ दिखाई देते हैं। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण, या रणेंद्र, या ये जो इधर विशेष रूप से तो जो भूमंडलीकरण का प्रभाव और उसके अधीन लिखने वाले लेखक हैं, तो संजीव जी हैं, या रणेंद्र हैं, और इस प्रकार के लेखक हमें दिखाई देते हैं। विनोद कुमार, राजीव रंजन प्रसाद, तो अजित गुप्ता वगैरह, या महुआ माजिद ये उपन्यास हैं। तो अंत में 2 वाक्य में हमारे तेलुगु लेखक जो हिंदी में लिखते हैं, अनुवादक, तो इनका नाम उल्लेख भी करना चाहता हूँ। बालशव रेड्डी, या अरगपुर रमेश चौधरी, आलूरी बैरागी, कर्णवीर नागेश्वर राव, दलितों की विनती, तो बहुत पहले 1930-20 के आसपास इन्होंने लिखी थी। ये आंध्र तेलुगु भाषी हैं जिन्होंने तो हिंदी में लिखी, और अनुवादकों में हमारे भीमसेन निर्मल जी का नाम, और फिर उनके साथ भी आदेश्वरा जी का नाम, प्रोफेसर माधर जी का नाम, कई लोग हैं, आचार्य इसकी नरसिम्हाचार्य जी का नाम तो हमें लेना चाहिए। और हाँ, अब फिर एक बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य या हिंदी ज्ञान का साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। जरूर आप इस साहित्य को पढ़िएगा, इसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना या भारतीय भाषाओं से तो हिंदी में ले जाना एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से हम भारत की सृजनात्मकता, जो एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की क्या देन होगी दुनिया को, तो कभी एक कॉन्फ्रेंस में, तो साहित्यकार जिस रूप में भारतीय जमीन से अपने आप को जोड़कर लिखते आ रहे हैं, वो हिंदी में भी दिखाई देता है, भारतीय भाषा में सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इस दृष्टि से दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय भाषाएं समृद्ध हैं, हिंदी समृद्ध है। तो हिंदी में जो रचनाएं आ रही हैं, इनको हम पढ़ेंगे, इनका आस्वादन लेंगे, और हमारे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में तो ये रचनाएं काम आएगी। इन बातों के साथ ये जो मौका मुझे आयोजन की ओर से दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। బుద్ధ మురళి గారు సమాచార శాఖ పూర్వ చీఫ్ కమిషనర్, వారిని వేదికవాల్సిన కోరుతున్నారు. రామదాస్ గారు ఫార్మసీ కళాశాల అఖిల భారత అధ్యక్షులు, వారిని వేదికకి రావాల్సిన కోరుతున్నారు. मैं क्षमा चाहूँगा आदरणीय सर्राजू जी से, इस समय का अभाव रहने के कारण आपको संक्षिप्त में अपने वक्तव्य देना पड़ा, और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूँगा कि 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए कहने का कष्ट करें. Friends, our secretary Shrutikant Saab
చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి హిందీ భాష గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. సర్రాజ్ గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. హిందీ భాష మీద మాకు గౌరవం ఉంది, ప్రేమ ఉంది, కవియూరి మీద గొప్ప గౌరవం ఉంది. మీరు చెప్పినటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క తండ్రి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ మీద ఇంకా గౌరవం ఉంది. అరే మందిర్ మసీదుకు పోతే ఘర్షణలు వస్తాయి, మధుశాలకు పోతే ఏకత వస్తుందని చెప్పాడు. అది చప్పట్లు కొట్టాడు, మంచి కార్యక్రమం కదా. మందిర్ మసీదులో ఘర్షణలు, మధుశాలలో ఏకత అన్నాడు హరివంశరాయ్ బచ్చన్. తెలుగులో సినారే ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టుంది ఆ పుస్తకాన్ని. ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణ కూడా నేను హైదరాబాద్లో వెళ్ళాను. సర్రాజ్ గారు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని మేము కొంచెం తక్కువగా మీకు ఇంకా బ్రహ్మాండమైనటువంటి నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఇట్లా ఉంటారో ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్తారో తెలియదు, కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మాత్రం బుక్ లాంచింగ్ ఒకటి పెట్టి మీరు హిందీలో డిస్కషన్ చేయడానికి కూడా డయాస్ ఏర్పాటు చేస్తాం. మేము ఒకటే అంటున్నాం సార్, మొత్తం మీద హిందీ భాషని తప్పకుండా చదవాల్సిందే, అధ్యయనం చేయాల్సిందే. ఇంగ్లీష్ భాషని అందరూ చదవాల్సిందే, అధ్యయనం చేయాల్సిందే. కానీ భారతదేశంలో ఒక భాష మీద ఇంకొక భాష, ఒక వ్యక్తి మీద ఇంకొక వ్యక్తి ఆధిపత్యాలు ఉండకూడదన్నదే మేము కోరుకుంటున్నాం. రెండోది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 344, 348 ప్రకారం భారతదేశంలో 22 భాషలకు ఇప్పటికీ అధికార భాషా హోదా రావాలి. ఆ అధికార భాషా హోదా రాలేదు. ఇంకా తెలుగుకి తమిళానికి అధికార భాషా హోదా ఇచ్చారు, కానీ అది తూతూ మంత్రంగా ఇచ్చారు తప్ప అది ఒకటి నెల్లూరులో ఒక కేంద్రం పెట్టారు, తెలంగాణలో ఇంతవరకు కేంద్రం లేదు తెలుగుకి సంబంధించి. మీకు కోరేది ఏంటంటే భాషకు సంబంధించే తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించింది. భాషకు సంబంధించినటువంటి ఫైట్ కూడా ఇంటర్నల్ గా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణలు. అందుకే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇచ్చినటువంటి 22 భాషలకు అధికార భాషా హోదా ఇవ్వాలన్నదే హైదరాబాద్ బుక్ ఫేర్ నుంచి ఈ 35వ జాతీయ పుస్తక ప్రదర్శన నుంచి మేము తీర్మానం చేస్తూ డిక్లేర్ చేస్తూ అందరికీ అధికార భాషా హోదా ఇవ్వాలి, ప్రతి భాషను గౌరవించాలన్నటువంటిదే మేము హైదరాబాద్ బుక్ ఫేర్ నుంచి మేము కోరుతున్నాం. భాషలకు సంబంధించి భాషా ఔన్నత్యానికి సంబంధించి మనకు భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా ఉన్నటువంటి ఈ భారతీయ భాషల్లో ఐక్యత కూడా అవసరం. మీరు దయచేసి మా తెలంగాణ నుంచి అట్లాగే తెలుగు భాష నుంచి వచ్చిన వాటిని కూడా మొత్తం హిందీలోకి పంపాలని, హిందీలోకి అనువదింపజేయాలని సర్రాజు గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ, ఈ రోజు మనకు వాళ్ళు మాట్లాడకుండా అతిథులుగా ఇచ్చేసినటువంటి సమాచార శాఖ చీఫ్ కమిషనర్, మాజీ చీఫ్ కమిషనర్ బుద్ధా మురళి గారు, అట్లాగే ఫార్మసీ కళాశాల అసోసియేషన్ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ రామ్దాస్ గారు, వీరు ఒక్కొక్క నిమిషమే మాట్లాడతారు. మామూలుగా నేను మాట్లాడడానికి రాలేదండి, పుస్తకాలు చూద్దామని వచ్చాను. నా అనుభవాన్ని మేము ఇంతకుముందు ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేశాను, మీతో పంచుకుందామని. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా కూడా జనం లేకుండా దివాలా తీశారు. మన హీరోలు అందరూ కూడా ఓటీటీలో వస్తున్నారు సినిమా చూడడానికి. అలాంటిది ఈ పుస్తక ప్రదర్శనశాలలో ఇంతమంది జనాన్ని చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అంటే ఏదో జనం ఆలోచనలో మార్పు వచ్చిందా, స్ట్రెస్ నుంచి దూరం కాదు, ఏంటో తెలియదు, కారణం ఏంటో తెలియదు. కానీ నేను లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాను, ఇంతమంది లేదు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి వేదిక మీద కూర్చొని వేదిక ఎక్కువసేపు ఉండకుండా వెళ్ళిపోయాను. కాబట్టి లేదు మరి ఏంటో తెలియదు, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు. పిల్లలను తీసుకొస్తున్నారు, ఇంకా 5-6 అయిందంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు. ఈ ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లనే ఒక పెద్ద జాతరగా తాగదని, సమ్మక్క సారక్క జాతరను మనము ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటాము తెలంగాణలో, హైదరాబాద్ సంబంధించి ఇంతవరకు పుస్తక ప్రదర్శన అనేది అంత అద్భుతంగా జరగాలని, రోజు రోజు పెరగాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు మిత్రుడు జుడూల్ గారు, శంకర్కు, మిగతా సిబ్బందికి అభినందనలు చెప్తూ కృతజ్ఞతలు. రామదాస్ గారు ఒక్క నిమిషం. గౌరీ శంకర్ గారు, ప్రొఫెసర్ సర్రాజు గారు, రేవంత్ భారతి గారు, శ్రీమతి గారు, మా ప్రియమిత్రులు మాజీ ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ బుద్ధా మురళి గారు, మా తెలంగాణ పబ్లిక్ చంద్రమోహన్ గారు, అందరికీ కూడా హిందీ భాషకు సంబంధించి మేము సెంట్రల్స్లో 90s ఉన్నాం. అప్పటికే మాకు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో భీమ్సేన్ నిర్మల్ గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఆ తర్వాత మాకు మోహన్ సింగ్ గారు ఉండేవారు, తర్వాత శశి ముద్రాజ్ గారు మేడం కూడా ఉండేవారు మా సెంట్రల్స్లో. వారు చెప్పినట్టుగా ఈ తెలుగు భాషకు సంబంధించి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ సైమా ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఇవాళ దక్షిణాది భాషలకు సంబంధించి ప్రత్యేకత ఏం లేదు, మామూలుగా ఉత్తరాది భాషలకు ప్రత్యేకత ఏం లేదు. ఇవాళ పాన్ ఇండియా సినిమాలన్నీ కూడా తెలుగు సినిమాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా డామినేట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి తెలుగు భాషకు సంబంధించి వచ్చినటువంటి ఫోకస్ కానీ
ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం మిగతా దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా రాష్ట్రాల వాళ్ళు వచ్చినటువంటి ఇక్కడ నుండి స్థిరపడ్డ తీరు కానీ అంతా కూడా తెలుగు భాష ఎంతగా డామినేట్ చేస్తుంది అనేది కూడా అంటే భాషలకు అతీతంగా మనం ఇక్కడ ఎదుగుతున్నాం. అది బుక్ ఫేర్ సూచిస్తోంది. ఈ బుక్ ఫేర్ సంబంధించి పఠనాసక్తి పెరుగుతుంది రోజు రోజుకి. గౌరీశంకర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంకా ఇంకా ఎదగాలని ఆశిస్తూ మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. अभी बहुत अच्छी मधुशाला की बात हो रही थी. एक भिखारी ने गुरुद्वारे के पास जाके भीख मांगने का सोचा. वो भीख मांगने लगा. वहाँ उसे कुछ पैसा नहीं मिल पाया. फिर वो अपना बर्तन लेके भीख मांगने मंदिर के बाहर बैठा. वहाँ भी उसे पर्याप्त धन नहीं मिला. उसके बाद वो चर्च के पास गया. वहाँ भी उसे पर्याप्त धन नहीं मिला. अंत में वो निराश होकर मधुशाला पहुँच गया और मधुशाला के पास अपना बर्तन लेके बैठ गया. मधुशाला के पास बैठने के बाद उसका बर्तन जो है वो तो रुपयों से भर गया. तो उसने कहा, हे भगवान, आप रहते कहाँ हो और पता कहाँ का बताते हो. धन्यवाद. अरे मधुशाला का होता है. मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे सरराजू जी का शाल और मालाओं से स्वागत करें. నేను 1:30 పోతా అంటే వస్తా. లేదంటే వెయిట్ ఎవరు లేడు మామ. ఎవరు వచ్చి ఉండడు ఇక్కడ బుక్ పేరు కదా. माला से हमारे अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करना चाहूँगा मैं. నాకు పైసలు అవసరం ఉన్నాయి, మరి ఏం చేయాలి, ఎవరు లేడు. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मंच पर आसीन एवं श्रोतागणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पे पधारे. बहुत बहुत धन्यवाद. हार्दिक स्वागत.